का मेन गेट। ये जो दिख रहे हैं ये बीपी सिन्हा अंकल हैं, जो टाटा कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये हैं आंटी सरोज लता सिन्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करूँगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाती बीपी सिन्हा, जो छपरा के हैं, और ये बीआईटी सिंधरी के फर्स्ट बैच मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, और साथ ही साथ ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है। ये भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में इन्होंने इस संस्थान के अंतर्गत कार्य किया है। जैसे पहली बार इन्होंने बीटे लंदन यूके गए, उसके बाद और कई सारे देशों में इन्होंने कार्य किया, यूके यूएसए और अन्य देशों में इन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत काम किया है। आइए हम अब मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं बीपी सिन्हा अंकल से। मेरा नाम बीपी सिन्हा, born at Chapra in 1930, did my schooling at Chapra, joined engineering college at Patna, and then finally at Sindri. I became the first batch of 1953 mechanical in 1953. During this period, I got married with Saroj Lata Sinha, a resident of UP. Also got blessed with a daughter, Ambalika Sinha, Ambalika Verma, who is at present working with her husband. From 1976 itself, I came into the system of heartfulness and started a balanced life of physical and spiritual. So, from 19 till now, I am working, and also a trainer of this system from 1984. I have trained about 500 to 600 people at Patna, in the students who have gone in different parts of the world and in India, leading a very peaceful life. At present, the whole humanity, because they are not working with the two principles, with the principle, leading a very life just like that bird which has got one wing is not well, we cannot fly. So similarly, we are not able to fly our day and night work, and live in tension. And this tension has created whole world, different type of diseases, and they are not so. Once this system of the spread in the whole world, that will create a system of spiritual life. And a time will come when India will lead the whole world in spiritual life and become the leader of the world. You have a lot of experience about the spirituality. If you are not joined this mission, and after joining this mission, what is the difference between that time and this time? If I have not joined this mission from 1926, I just left just like another human being. We are in tension all the time and having all the problems. So by this not remaining in tension, I am able to face my life, both, that is the bad life and the good life. Because every human being has got to live in both the sides, that is good and bad and good, and I am able to face both of them happily. What is the experience about Dr. Rajendra Prasad? He was the first president of India, the grandpa of you. What is the experience about you? At one time, I went to Delhi and stayed with him, with my mother, and got the opportunity to see this parade, 15th August and 26th January. And the second, once I came to know that Nana is going to Bombay to give the flag salutation to Naval, I thought I must ask him. So, on the main table of lunch, always used to sit in his side, on the right side. So I asked him, Nana, हम चल सकेला Bombay? हाँ चल सकेला. And he immediately called the military secretary and asked him to make preparation to go along with him to Bombay. He said, the train is full, no space. Immediately asked, make a bigger plane to go along with me. And so I went along the same plane
spent 2 or 3 days in the Raj Bhavan of Bombay. So this is like this one. So many experiences were with me. So that is what I learned from the spiritual life. To tell my voice to anybody frankly. The other thing which I am doing is that anywhere I went, I met a lot of friends who still are remembering me in America, in Canada, UK, and in India also. So this is the quality of the spiritual life which is obtained by living a balanced life. He has got the love with him for everybody. And love is one item which we get it from God. And I have inherited because of my mother. She was a very pious lady. And I learned from her this spiritual life right from childhood. Then I came to Jamshedpur, Gita and all those things, 12 chapters of Gita, and very books from him. And this I utilize in how to proceed further. And this way I started learning to the physical life and spiritual life together, side by side. So this side by side means I enjoyed anybody who came to my side. He started to love and I also started to love. Object of heartfulness that you become okay for everybody and he becomes okay too. So the heartfulness is giving this training that how to lead a balanced life, live a better life, a tension-free life. This is what I also spoke in UK, USA. We had an Institute of Technology with 100 students from all over the country came and joined. I also joined. And I gave a lecture on this talk. And my aim was that this training should be given to BIT itself where the students are learning and from there they can come out. And this is one of the reasons that I am able to live so far with my wife. Both of her. थोड़ा सा नहीं हम नहीं थोड़ा सा बोल क्या बोलना ये बीपी सिन्हा अंकल हैं, उनकी वाइफ हैं सरोज लता सिन्हा। और आप बताइए अपने बारे में। क्या बता हम कहाँ के मतलब कहाँ से हैं आप? हम हैं यूपी कानपुर से और एजुकेशन मेरी बनारस में हुई वसंता कॉलेज से और उसके बाद हमारी शादी हुई 1952 में। तब से हम किस चीज़ में आप कॉलेज में किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? क्या हम बहुत चीज़ में इंटरेस्टेड थे। तो हम म्यूज़िक में थे, डांस में थे, सितार वगैरह बजाते थे, सब एक्टिंग वगैरह करते थे। यही सब पीटी वगैरह करते थे हम लोग। बास्केटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, सब वॉलीबॉल खेलते थे। सब हम लोग की एक्टिविटीज़ वहाँ चलती थी। उसके बाद से फिर हम लोग फिर जब शादी हो गई। उनका जब जॉब कर रहे थे उस दौरान आप कब गए विदेश, कब गए साहब? हम लोग हाँ शादी के बाद बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई। उसके बाद से हम फर्स्ट टाइम अमेरिका गए 1982 में। वहाँ 1-1.5-2 महीने रहे और ये मिस्टर सिन्हा अपना टूर में गए थे कंपनी की तरफ से, तो हम लोग फिर लौट के आ गए। उसके बाद से 91 में रिटायर कर गए ये कंपनी से। उसके बाद हम लोग पटना आके सेटल किए। पटना आके सेटल फिर हम लोग का मिशन में, हम लोग रामचंद्र मिशन में 91 में हम भी ज्वाइन कर लिए। उसके बाद से पटना आके यहाँ हम लोग का सब चलता रहा। मेडिटेशन के उसमें क्लासेस, हम लोग संडे को सत्संग करते थे। हमारे यहाँ फुल डे प्रोग्राम होता था, सब आते थे लोग यहाँ पर, खाना पीना पूजा वगैरह सब होती थी। यही हम लोग का सिलसिला चलता रहा। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले हैं कि नहीं? बीपी सिन्हा अंकल के नाना जी से आप हाँ मिले? हाँ, हम लोग जब वो प्रेसिडेंट थे तो हम लोग 1959 में हम लोग दिल्ली गए थे 26 जनवरी अटेंड करने के लिए। तो राष्ट्रपति भवन में ही ठहरे थे। वहाँ एक हफ्ता हम लोग थे नाना जी के साथ। हम लोग सब अच्छा इंडिपेंडेंस डे 26 तो वहाँ पर उनके साथ में गैलरी में बैठे
जहाँ झंडा उत्तोलन वगैरह होता था, तो हम लोग वहाँ शाम को फुल रिट्रीट फंक्शन होता था, उसमें हम लोग गए साथ में। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के, शाम को उनके अपना रूम में बैठ के सब अपने ग्रैंड डॉटर्स वगैरह के साथ, हम लोग के साथ बैठ के भजन वगैरह गाना गवाते थे। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के। और तो हम बाकी तो हाउस वाइफ हैं, खाने वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, रेसिपीज़ वगैरह वगैरह हमारा ये है। अंकल के साथ कैसा अभी था इतना लंबा समय सफ़र आपका? ठीक ही रहा, चलता रहा हम लोग का। 1950 में 50 साल के जब नौकरी कर रहे थे, तो यही क्वेश्चन पूछा लोगों ने, आपको कैसे अच्छा लौटते चलते जिंदगी में। ये जो दिख रहे हैं ये बीपी सिन्हा अंकल हैं, जो टाटा कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये हैं आंटी सरोज लता सिन्हा। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ उन्हें अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता था, उनके नाती बीपी सिन्हा और सरोज लता सिन्हा से आपके मुलाकात करवा रहे थे, बातचीत करवा रहे थे। और इन लोगों का जो पूरा लाइफ का सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा, और बार बार मुझे भी हमेशा ये गाइड करते रहते थे, एक पेरेंट्स की तरह हमेशा हर विकट परिस्थिति में भी, चूँकि मैं भी इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन में अभ्यासी हूँ, मैं भी करता हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये बीपी सिन्हा अंकल का घर है, इसमें इनका भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। ये फ़ोटो दिख रहा है जो ये बीपी सिन्हा और आंटी सरोज लता सिन्हा हैं, और साथ में ये इसमें पूरे इनके फैमिली का है। इनके एकमात्र बेटी है अंबिका, और उनके ग्रेट चाइल्ड है आगे। बीपी सिन्हा अंकल के एकमात्र बेटी अंबिका वर्मा हैं, जो NRI हैं, अमेरिकन नागरिक हैं, और वहीं पर वो रहती हैं और यहाँ भी आती रहती हैं। अंकल भी अभी तो काफ़ी अस्वस्थ रह रहे हैं। ये दोनों लोग भी हमेशा जाते रहते थे, 6-6 महीना वहाँ रहते हैं। आप लोग अमेरिका और अमेरिका का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप काफ़ी बार अमेरिका गई हैं। 500-7 बार हुआ है अमेरिका, रह आए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन एंड वेरी वेल सेटल लोग है वहाँ पर। का बिहेवियर वगैरह बहुत अच्छा रहता है, हेल्पिंग नेचर भी रहता है वहाँ पर। सब तरह से फिजिकली वेरी वेल, बट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, नॉट लिविंग ए गुड लाइफ। इसी के साथ हम आप लोग से इजाज़त लेंगे, और एक बहुत ही महान हस्ती से आपको मिलवा रहे थे। ये शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिकता क्षेत्र में भी प्रशिक्षक रहे हैं, और काफ़ी इनका भारत ही नहीं पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जिससे आपको भारत के साथ साथ पूरे विश्व का और इनके जीवन का दर्शन मिलेगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद। वेलकम बैक टू पीके पार्थ यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाते बीपी सिन्हा के बेटी अंबालिका वर्मा, जो अमेरिकन नागरिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब बीपी सिन्हा अंकल तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हम लोग के बीच हमेशा रहेगी। और अब हम बात करते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उनकी लाइफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लाइफ में तो बहुत चीज़ है जो कि अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में तो बहुत मेडिटेशन को लेके
सब कोई लोग बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए हैं और उनको हरदम मन में रखते हुए सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको लव है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वो बहुत ही फेमस थे। तो उनको सब कोई बहुत बहुत ही प्यार करता था। तो और हमेशा वो ये उनके बीपी सिन्हा अंकल के दामाद हैं, ये रजत वर्मा। हाँ, और हमेशा वो कहते थे कि लाइफ को बैलेंस करा कर रखना चाहिए, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं। तो उनका ये बहुत बड़ा ये मैसेज होता था सबको जब भी जाते थे कि लाइफ को बैलेंस करा के रखो। आई एम जोकिंग, सॉरी। और अंकल वहाँ यूएसए में भी आपके साथ हमेशा जाते रहे हैं और भारत विश्व में कई देशों में उनका भ्रमण रहा है। उनके साथ तो हम लोग बहुत घूमे। जब भी उनके साथ जाते थे तो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग निकल जाते थे वहाँ पर। एक ट्रिप मुझे याद है जब वो अटलांटा के उसमें आश्रम में हम लोग गए हुए थे, तो वो बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का। हम लोग 2-3 दिन थे वहाँ पर, और जब भी आते थे तो वो सबसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते थे। वही बहुत बड़ी बात थी उनकी। बच्चों से लेकर के यंग लोगों से लेकर के ओल्ड लोगों से सबसे उन्हीं की तरह से बात करते थे। और उनका जो विचार था वो इतना था कि उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। सो हम लोग के लिए तो वो उनका वॉइड कभी भी फिल नहीं होगा। और मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि क्या हम लोग, सॉरी। उनका जो व्यवहार और विचार था उसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हम लोग भी उनके जीवन उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखे हैं और हमेशा वो डिसिप्लिन और रूटीन वे में हर काम करते थे। इससे हम लोग के आने वाले जो लोग इस पी के पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इनको देख रहे हैं, इनकी जीवन वृत्तांत को, के जीवन दर्शन है, वो काफ़ी आज के मानव के हर लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना अभी भौतिक लाइफ में, फिजिकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत टफ है। बट उन्होंने अपने एक समझिए कि शताब्दी जिया उन्होंने, और एक हम लोग के बीच एक शताब्दी का अंत हो गया। और मैंने बहुत लोगों से, बुजुर्गों से मिला, लेकिन हर लोग इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन दूसरे के बारे अपने बारे में ही पूछते रहते हैं। लेकिन उनका एक खासियत था कि वो हमेशा जब भी आता था कोई तो दूसरे के बारे में ही पूछते थे। और हर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यूथ हो, हर के साथ किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए, डील करना चाहिए और उसकी समस्या को कैसे सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, वो हर गुण उनमें समाहित था। और गीता, उपनिषद जैसे बहुत से पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था। और ये बता दें कि ये BIT सिंधरी के फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1953 में इन्होंने इंजीनियरिंग किया था। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में, UK, USA में तो इन लोगों के जो हैं बेटी, जो दीदी हैं बालिका वर्मा, उन लोग वो तो वहाँ की नागरिक ही हैं। तो और भी जगह घूमें और हर जगह लोगों को गाइड करते रहें। और बहुत ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन में भी ये ट्रेनर थे और इसके माध्यम से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया। इसके साथ हम आप सबसे इजाज़त लेंगे। प्लीज़ CPK पार्थ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।